Janata Party, a dear friend of mine and also a candidate from Kerala in the last election, Shri Anil Antony ji, and the both of us will be addressing you on a very important issue that has actually shaken the conscience of this country. Are we audible? Friends, the visuals of the burning pyres that are emanating from Tamil Nadu makes all of us, every Indian, hang his head in shame, sorrow, anger and grief. These burning bodies of 53 individuals, they are the bodies of 53 Indians. They are the bodies of 53 Tamilians. They are the bodies of 53 breadwinners of their families. They are the bodies of 53, majority of them are youth. And because that area in Tamil Nadu, if you are familiar with it, Karunapuram, it is a SC dominated area. A majority of these 53 people unfortunately belong to the SC community, to the backward community. And this image will be remembered for a very, very long time because this image is not the image of a tragedy. It is the image of a man-made disaster, a state-sponsored murder for which the DMK government is solely responsible. But instead of taking action on this state-sponsored murder, what we find from the DMK is that it continues to shield the villains of this ghastly crime. In May 2023, friends, you would remember that 23 individuals had lost their lives by the consumption of spurious illicit liquor. That was in Villupuram and in Chengalpet. At that time too, the BJP Tamil Nadu, its leadership, had exposed the nexus between the DMK leaders and functionaries and this entire illicit liquor trade that is taking place in Tamil Nadu. But nothing was done. DMK today has come to mean two things. Do nothing, muzzle everyone, kill people through illicit liquor. DMK means D for do nothing, M for muzzle everyone, K for kill everyone through illicit liquor. The other meaning of DMK has also become Daru, Mafia and Katta Panchayat. And therefore when this nexus was exposed in May 2023, after 23 people lost their lives, instead of taking strong action, Chief Minister Stalin and the DMK government protected the entire nexus of illegal liquor mafia with the politicians of DMK. In this case too, you will find that what you have seen in Karunapuram village, in Kallakurachi, the entire operation was taking place right in the middle of the town, right in the middle of that area, right next to the court and next to the police station. Could this have happened without the involvement and the nexus of the local police, political and other administration? One of the accused that has been arrested, if you see the media reports that are emanating from Tamil Nadu, you can find that there is a sticker of DMK party on the outside and the inside of his house. This is the media that has shown it. Which means clearly that one of the accused has deep links with the DMK party. There might be many more linkages that can only come out in a fair and impartial probe. But when the accused has a linkage with DMK, when the DMK administration and the police functioning under the DMK government has been complicit in this murder, in this state-sponsored murder, and when the DMK government has continually perpetrated this kind of illegal liquor trade, because in 2008 also you would have seen when
DMK was in power, 180 deaths took place. It is clear that this is not a Sahyog, it is not even a Prayog, it has become the Udyog of DMK to allow the illicit liquor to move on and to carry on at the cost of people's lives. We have also seen how DMK's functionaries have been time and again involved in drug rackets. Jafar Sadiq's name comes to mind. And therefore today, when such a tragedy or man-made DMK-sponsored murder of epic proportions has taken place, the Bharatiya Janata Party from Tamil Nadu right up to Delhi is making the following demands. One, Chief Minister Stalin, why aren't you allowing for a CBI probe in this entire matter when it is clear as daylight that your administration and the police was clearly involved in this illicit liquor trade which has cost the lives of 53 people and counting? Can there be any faith in the CBI, in the CBCID probe that has been ordered by the state government? Second, why is the Minister of Prohibition and Excise, Mr. Muthuswamy, not being sacked immediately for an impartial probe to take place? Third, what is the cost of one life in Tamil Nadu? 10 lakh rupees. 10 lakh rupees is enough to take the life of one person in Tamil Nadu. Fourth, Karunapuram, as I was mentioning earlier, is a SC-dominated area. Majority of the victims, the families, belong to the SC community. Those who scream from the rooftops about Dalit lives mattering, today their eloquent silence is deafening. The eloquent silence of Shri Rahul Gandhi and Priyanka Vadra ji, who during the election spoke umpteen number of times about South India, about how they were the natural choice for South India, and about Dalits. Today, after this man-made disaster has taken place, thanks to their ally DMK, they have not uttered a single comment or word, leave alone a condolence message. And therefore my question is to Indie Alliance, which has some sort of fascination for anything to do with sharab and liquor. You can see whether it is in Delhi, Sharab Ghotala, whether it was the previous government in Chhattisgarh or Bhupesh Baghel, Sharab Ghotala, or whether it is Jharkhand, or whether it is now in Tamil Nadu. Why are the members of the Indie Alliance eloquently silent on this entire issue? And what will it take for Rahul Gandhi and Priyanka Vadra, who talk about many issues, many tragedies which take place in other states, for them to open their mouth on this entire issue where 53 people have lost their lives? This means that their concern for South India was only cosmetic. Their concern for SC community was only cosmetic. Finally, since majority of the victims are from the SC community, it would be appropriate, and we can make this demand as citizens of the country, that the SC Commission or the other commissions that are involved in this task should take notice of this, perhaps suo motu notice, and should ask the Chief Minister of Tamil Nadu and also the DGP and other functionaries of Tamil Nadu government and police as to who is responsible for the cost of these 53 lives. Until we speak, till now, Chief Minister Stalin has not visited the area concerned. This shows that he has abdicated all the responsibility, and therefore, today accountability must be fixed. We once again demand a CBI probe, and we demand immediate sacking of the Prohibition and Excise Minister. I will now hand it over to my colleague Anil Antony ji, after which we will open up for some questions. Good afternoon. I thank my esteemed colleague and senior spokesperson Shehzad Poonawala ji for the brief, and I also thank all my friends in the media fraternity for being here today.
the Bharatiya Janata Party today wants to bring to the nation's attention some very concerning incidents from the state of Tamil Nadu that is a grave danger for the well-being as well as the safety and security of our brothers and sisters in Tamil Nadu. In the past few days, over 200 people have been hospitalized in various hospitals in Tamil Nadu, from Kallakurichi to Jipmer to Salem and Mudiyambigam government hospitals. And 53 people have been confirmed death because of the consumption of spurious liquor that seems to be very readily available in the state of Tamil Nadu. The response and actions of the state government indicate a clear collusion between government authorities and a lackadaisical approach that is very detrimental towards the state's well-being. The first instances of these incidents happened between Tuesday evening and Wednesday, the 19th of June, where a few people, citizens of India, people of Tamil Nadu, had been hospitalized in various hospitals in the state after consumption of spurious liquor Tuesday evening. However, after some deaths, after the relatives of some of the victims coming out in public and saying that it is because of spurious liquor, the collector of the district, he came out in public and on record said that the deaths are because of some mysterious illness without referring to spurious liquor. This misinformation led to more people visiting many of these outlets, and in the last 2 days, the number of victims increased and the number of hospitalizations dramatically increased. These are not the first incidences that are happening in the state. As my esteemed colleague had already mentioned, in 2023, there had been 2 instances in Chengalpattu and Villupuram districts in Tamil Nadu, where there were 22 confirmed deaths. And according to National Crime Records Bureau, Tamil Nadu reported 20 such deaths in 2020 and 6 in 2021. These instances are very recurring and common in Tamil Nadu. BJP, first of all, we as a party demands the resignation of the Prohibition and Excise Minister, Muthuswamy, with immediate effect. However, here the responsibility is not just for one person. The Chief Minister, Sri M.K. Stalin, in his 2021 manifesto, had in his point 360 promised to abolish alcohol and bring prohibition in the state step by step. However, if you look at numbers of TASMAC, Tamil Nadu State Marketing Corporation, which is mandated to sell alcohol in the state, its revenue has been increasing by 18 to 22% every year. This means that the state's prohibition policy has failed. The Bharatiya Janata Party also requests the Chief Minister to look into the prohibition policy and bring it into the right immediately. The State President Annamalaiji and other leaders have visited the victims in the last few days, and each of the victims, they are below the poverty line, they are from below the poverty line, and they are all from the SC community, the lower caste community, and they are all daily wage earners who are many a times the lone breadwinners in their own families. The Tamil Nadu BJP has announced 1 lakh as a compensation to each family, and the Tamil Nadu Bharatiya Janata Party, led by Annamalaiji, has requested, is now fighting to ensure that there is a CBI probe in the incident, on the incident. The Bharatiya Janata Party also wants to ask the other partners of the India Alliance, the partners of the DMK, the Congress Party, the Communist Party, and all the parties, the Congress led by Rahul Gandhi, the Communist Party led by Pinarayi Vijayan, and all the other India Alliance members, why they are very, very silent on this issue. No concern on this issue has been showed so far. There is not even an evidence of any phone call that has gone from any of these leaders to the DMK leadership. The Bharatiya Janata Party wants to know why the other India Alliance partners are very silent on this issue. The Bharatiya Janata Party immediately wants the resignation of the Prohibition Minister who has failed. The Bharatiya Janata Party wants to know why the Chief Minister of the state
Sri M.K. Stalin has not gone to these areas so far. We want a CBI inquiry in the state. We are fighting for that. And we want to ensure that there is justice to each of the victims and there is well-being, safety and security for our brothers and sisters in Tamil Nadu. Thank you. Before we open it up for questions, I'll just make a brief statement in Hindi also. Primarily this issue, because it concerns Tamil Nadu, we thought it was better to open in English. मित्रों, जो दृश्य हम लोग उन जलती हुई चिताओं के देख रहे हैं लगातार, वो हर भारतीय को अपना मस्तिष्क झुकाने पर शर्म से, गुस्से से मजबूर करती है। क्योंकि वो दृश्य जो है वो केवल 53 लाशों के नहीं है, वो 53 भारतीय हैं, वो 53 तमिलियंस हैं, वो 53 ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के एकमात्र कमाई का स्रोत थे। वो किसी के भाई थे, वो किसी के बेटे थे, वो युवा थे, और अधिकतम लोग, क्योंकि करुणापुरम इलाका जो है कल्लाकुरिच्ची का, वो क्योंकि वो एससी अनुसूचित जाति समुदाय डोमिनेटेड इलाका है, तो ज्यादातर जो लोग थे वहां के वो अनुसूचित जाति से आने वाले लोग थे। और इस पर आज सवाल ये पैदा होता है कि इसको केवल कोई दुर्घटना घटना बोलना ये अन्याय होगा। दरअसल ये राज्य प्रायोजित मृत्यु है, राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर के पीछे केवल और केवल वहां की डीएमके की सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि इससे पहले भी मई 2023 में आपको याद होगा कि 23 लोगों की जान इसी प्रकार से गई थी तमिलनाडु के 2 जिलों में। उस समय पर भी भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु की इकाई ने यह बताया था कि कैसे डीएमके के नेताओं का और इस इलिसिट लिकर माफिया का पूरा तार जुड़ता है। पर उस पर भी डीएमके ने कुछ नहीं किया। डीएमके का मतलब ही बन चुका है डू नथिंग, कुछ मत करो, मजल एवरीवन, सबको चुप कर दो। असेंबली से लेकर सड़कों पर अगर कोई आवाज उठाए तो उनको चुप कर दो। और के से किल एवरीवन, अपनी शराब में पैसे कमाने की लालच से सबको मार दो। ये वही पार्टी है जिसको कहा जा सकता है डी फॉर दारू, एम फॉर माफिया, के फॉर कट्टा पंचायत। यही बन चुका है डीएमके का मतलब, बाकी और कोई उसूल नहीं बचे। और इसीलिए आज जब यह घटना हुई तो सवाल महत्वपूर्ण ये उत्पन्न होते हैं कि उस इलाके के बीचों बीच दिन दहाड़े ये कैसे चलता रहा। ये सारा कृत्य पुलिस स्टेशन के पास चलता रहा, कोर्ट के पास चलता रहा। क्या पुलिस की सांठगांठ और वहां के राजनीतिक नेतृत्व और एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी के बिना यह हो सकता था? दूसरा, जो वहां पर एक अपराधी पकड़ा गया है उसके घर से, यह मीडिया ने दिखाया है, डीएमके के जो प्रमोशनल मटेरियल है, स्टिकर वगैरह, वो दिखे हैं। मतलब कि वो डीएमके का एक्टिव कार्यकर्ता मालूम पड़ता है। पता नहीं वहां की पुलिस उसको दबाने का प्रयास करेगी, पर जब डीएमके के कार्यकर्ता इन्वॉल्व है, डीएमके द्वारा संचालित एडमिनिस्ट्रेशन उस पर निकम्मा बनकर बैठा रहा, डीएमके के चीफ मिनिस्टर के तहत, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी है, उनके तहत आने वाली पुलिस ने एक ब्लाइंड आई टर्न किया, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि डीएमके की सरकार इसमें निष्पक्ष जांच होने देगी? क्योंकि 2008 में भी अब जब जाते हैं, डीएमके की सरकार थी तो 180 ऐसी हत्याएं हुई थी। इसका मतलब यह संयोग नहीं है, यह प्रयोग भी नहीं है, यह डीएमके का सोचा समझा उद्योग बन चुका है। और इसीलिए आज हम लोग मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करवाने के लिए एक तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। दूसरा, जो एक्साइज के मिनिस्टर है मुत्थुस्वामी जी, उनका तो तुरंत इस्तीफा होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तीसरा, क्या एक जान की कीमत 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए, उनके परिवार उजड़ गए। चौथा, जो अनुसूचित जाति से आने वाले ज्यादातर ये लोग हैं, इनके लिए जब चुनाव थे तब राहुल जी और प्रियंका वाड्रा जी दलित लाइव्स मैटर, दलितों की कई बातें करते थे। आज जब अनुसूचित जाति के इतने सारे लोग डीएमके की सरकार की वजह से मारे गए हैं, तो उनके मुंह से एक शब्द अभी तक नहीं निकला है, एक कमेंट, एक कंडोलेंस मैसेज नहीं निकला है। 53 जाने गई हैं। ये क्या क्या कहते थे, साउथ में हम लोग हैं,
साउथ में बीजेपी साफ है, ठीक है, साउथ में आप लोग हैं ना, आपकी सरकार है। चुनाव खत्म तो साउथ से रिश्ता खत्म, चुनाव खत्म तो दलितों के साथ हुए अन्याय के साथ रिश्ता खत्म, खटाखट खत्म। यह असली चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। अन्यथा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अन्य विषयों पर छोड़े और इस विषय पर बोले, क्योंकि हर विषय पर तो वो बोलते हैं, जहां पर भी कुछ ट्रेजेडी होती है अच्छी बातें बोलना चाहिए। अब तो प्रियंका जी साउथ से चुनाव भी लड़ने जा रही है, पता नहीं जीतेंगी नहीं जीतेंगी, अनिल जी बताएंगे आपको वहां पे क्या स्थिति है और लेफ्ट की भी क्या स्थिति है। पर वहां पर जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बातें आप रखते हैं, आज आप चुप हैं। और आखिरी में सवाल यह पैदा होता है कि कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं स्टैलिन जी, कि वो जाए और वहां पर देखें कि क्या हो रहा है वहां पे लोगों के साथ। ये बेशर्मी है। और मुझे लगता है कि क्योंकि ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, तो एक नागरिक होने की हैसियत से, पार्टी की हैसियत से नहीं कह रहा हूं मैं, जो हमारा एससी आयोग है उसको भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, तो कोर्टों को भी संज्ञान लेना चाहिए। ये मैन मेड डीएमके स्पॉन्सर्ड हत्या है, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपके कुछ सवाल होंगे तो सवालों को लेंगे। हाँ, लगातार आज भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की उसके सोशल मीडिया पे आप जाकर देख भी सकते हैं, हमारा हर नेता सड़क से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर न्यायालय तक, मतलब कि केवल एक नहीं 3 तरफा लड़ाई, उसको लड़ने के लिए कटिबद्ध है। अन्नामलाई जी स्वयं गए थे, उन परिवारों से मिले, उन पीड़ितों से मिले। जैसे अनिल जी ने बताया 1-1 लाख रुपए हमने अपनी तरफ से मुआवजा उनको दिया है। उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कानूनी रूप से भी लड़ेंगे, सड़कों पर भी लड़ेंगे। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई जब तक इसमें सीबीआई की जांच और जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, तब तक इस विषय पर हम लोग उन परिवारों के साथ, उन अनुसूचित जाति के परिवारों के साथ खड़े रहेंगे। हमारा रिश्ता केवल चुनाव तक का नहीं है, हमारा रिश्ता दक्षिण के साथ और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हमारा सैद्धांतिक रिश्ता है, हमारा संवैधानिक रिश्ता है, हमारा केवल मतलब का रिश्ता नहीं। और किसी के कोई सवाल होंगे इस विषय पर तो देखिए, पहले तो सुप्रिया श्रीनेत जी और कांग्रेस पार्टी, यदि आप दलितों के, अनुसूचित जाति जनजाति इन लोगों के बड़े शुभचिंतक है, तो आपको बताना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना जो तमिलनाडु में हुई है, जिसमें ज्यादातर पीड़ित अनुसूचित जाति से आते हैं, उनके ऊपर अभी तक आपका कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का एक भी वक्तव्य नहीं आया। परंतु मैं समझता हूं कि जो बयान सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश खासकर दे रहे हैं, ये दरअसल देश में जब एक ट्राइबल व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बनता है और उनका नाम है किरण रिजिजू, तो आदिवासी समाज के प्रति इतनी वैमनस्य है, इतनी नफरत है कांग्रेस पार्टी को कि उन्होंने इस प्रकार का झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाया। सबसे पहले तथ्य यह है कि जिस पार्लियामेंट्री कन्वेंशन की सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश बात कर रहे हैं, उसमें साफ साफ है कि जो सीनियर मोस्ट एमपी होता है, जिसका अनब्रोकन रिकॉर्ड होता है पार्लियामेंट में, अनइंटरप्टेड रिकॉर्ड होता है पार्लियामेंट में, उनको प्रोटेम स्पीकर वेस्टमिंस्टर मॉडल में बनाया जाता है। अब तथ्य क्या है? महताब साहब 7 टाइम कंसेक्यूटिवली सांसद बने। कंसेक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, नॉन स्टॉप, विदाउट ब्रेक, विदाउट फेलिंग इन एनी इलेक्शन। के सुरेश साहब 8 बार के सांसद जरूर है, पर 98 और 2004 का चुनाव हारने पर उनके केवल 4 टर्म कंसेक्यूटिव है। और इसीलिए जो वेस्टमिंस्टर मॉडल का पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ये रूल या कायदा या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, उसके हिसाब से महताब साहब को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। पर मेरा सवाल आज कांग्रेस से दूसरा है। 2004 में
हमारे पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी 10 बार के सांसद थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब 9 बार सांसद थे, प्रोटेम स्पीकर बना कौन? विखे पाटिल साहब, जो 8 बार के सांसद थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी बताए कि जब झारखंड में 2005 में कांग्रेस ने बालमुचु जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया, वो सबसे सीनियर मोस्ट नहीं थे। 2008 में जब कांग्रेस पार्टी ने श्री बोपैया जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया, तब भी वो सबसे सीनियर मोस्ट नहीं थे। और ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर मैं नेहरू जी के जमाने में जाऊं तो सरदार हुकुम सिंह को प्रोटेम स्पीकर बनाया, सीनियर मोस्ट नहीं थे। 1977 में डीएन तिवारी जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, वो सीनियर मोस्ट नहीं थे। और स्वयं एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जो जस्टिस बोबड़े सुन रहे थे, उनके सामने संभवतः अभिषेक मनु सिंघवी ने आर्ग्यू किया कि ये तो केवल एक कन्वेंशन है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट को बनाया जाए। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब तथ्य दिखाते हैं कि महताब साहब सबसे सीनियर मोस्ट कंसेक्यूटिवली बने हुए सांसद हैं और उनका अधिकार बनता है प्रोटेम स्पीकर बनने का, और जब उनको बनाया गया तो केवल इसलिए क्योंकि किरण रिजिजू साहब ट्राइबल समाज से आते हैं, जयराम रमेश जी ने उनके ऊपर इतना बड़ा आक्रमण किया। और ये कोई इकलौता ऐसा आक्रमण नहीं है। जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी तो उनको राष्ट्रपत्नी कहा गया। अजय कुमार, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, ने कहा कि ये द्रौपदी मुर्मू जी की तो ईवल मानसिकता है। तो आदिवासी समाज के प्रति इनका कितना वैमनस्य है, इस पूरे हमले से पता चलता है। मुझे लगता है अगर कोई और सवाल नहीं होंगे तो इस प्रेस वार्ता को समाप्त। भाई साहब, ऐसा है, पहले शराब घोटाला, फिर पानी का घोटाला, वाटर टैंकर का घोटाला, अब अनशन में भी घोटाला। ये मजेदार बात है, अभी कई लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो जारी किया है और संभवतः भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने भी इसको जारी किया है कि 10:30 बजे किसी ने दिखाया कि सुबह 10:30 बजे थे, वो अनशन पर पहुंचे नहीं, और रात को 11 बजे वो अनशन से उठकर शायद डिनर विनर करने के लिए चले गए। बीच में लंच के लिए भी ब्रेक लेते हैं। तो ये कैसा अनशन है कि ब्रेकफास्ट खाने के बाद शुरू होता है और लंच करने से पहले समाप्त हो जाता है। तो अनशन में भी घोटाला करने की ये पार्टी उतारू है। और सवाल यह है कि अनशन नहीं, एक्शन करना है। भाई, सरकार आपकी, जल बोर्ड आपका, व्यवस्था आपकी, प्रदर्शन आपका, और जिम्मेदारी भाजपा की। ये किस प्रकार से जिम्मेदारी हमारी है भाई? 10 साल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीधे सीधे कि वाटर टैंकर माफिया और जो वाटर वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का घोटाला किया है, तो वहां पे कोई नई व्यवस्था है, पाइप्स नहीं बन पाई है। ये दोनों मुख्य कारण है कि दिल्ली की जनता आज पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। इस पर एक्शन करने के बदले अनशन का और ड्रामेबाजी का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। और इनसे पूछिए, अगर आप मुझे इजाजत देंगे 10 सेकंड की, तो मैं बड़ी दिलचस्प चीज सुनाना चाहता हूं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। 2012 में अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, किया जा सकता है। जहां तक पानी का सवाल है, दिल्ली के अंदर आज 40% दिल्ली को पीने का पानी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? देवली के अंदर पानी नहीं है, मेहरौली में पानी नहीं है, अम्बेडकर नगर में पानी नहीं है, संगम विहार में पानी नहीं है, चिराग दिल्ली में पानी नहीं है, लाल कुआं में पानी नहीं है। क्यों नहीं पानी है? 40% दिल्ली में घर में पानी नहीं आ रहा। ऐसे नहीं कि पानी की कमी है हमारे देश के अंदर, हमारी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में 84 करोड़ गैलन पानी प्रतिदिन बनता है। 2 करोड़ की जनसंख्या है। इसको आप भाग देके देख लीजिए, 250 लीटर पानी प्रतिदिन हर व्यक्ति के लिए बनता है। 250 लीटर पर कैपिटा पर डे। हर आदमी के लिए इतना पानी बनता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, हर आदमी के लिए इतना पानी बनता है। इंग्लैंड के अंदर 150 लीटर पानी बनता है रोज हर आदमी के लिए। जर्मनी के अंदर 150 लीटर पानी बनता है रोज हर आदमी के लिए। दिल्ली में फिर इंग्लैंड में और जर्मनी में 24 घंटे पानी आता है, उनकी टूटी में साफ पानी आता है। दिल्ली में 250 लीटर बनता है, फिर भी हमारी टूटी में पानी नहीं आता। ये पानी जाता है। तो ये सारा का सारा पानी जो है ये चोरी हो रहा है, हमने पता करवाया। ये दिल्ली में कई 100 वाटर टैंकर कंपनीज काम कर रही है। आज आप अभी वाटर टैंकर कंपनी को फोन करो, उसको बोलो 20 वाटर टैंकर चाहिए, तो तुरंत भेज देगी। उसको पानी कहां से मिलता है? आपके घर में पानी। जब सत्ता में नहीं थे तो उनको पता चल रहा था पानी कहां गया। अब तो सत्ता में है आप, तो ये जो 250 लीटर पानी हर व्यक्ति के लिए, दिल्ली के वासी के लिए बनता है, आप ही ने कहा था वाटर टैंकर चुराते हैं। और वाटर टैंकर पर कार्रवाई करने के लिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप अनशन करते वाटर टैंकर माफिया के खिलाफ, उनके खिलाफ तो जुबान नहीं खुलती। आप कभी हरियाणा के लोगों को गाली देते हैं, आप कभी और राज्यों के लोगों को गाली देते हैं, कभी एलजी को गाली देते हैं, कभी भाजपा को गाली देते हैं। गाली देना बंद कीजिए और वाटर टैंकर के साथ आपकी क्या साठगांठ है वो बताइए। मैंने सुना है
मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं कि जैसे शराब घोटाले में एक मॉडल था कि हर बोतल शराब बिकने पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कमीशन जा रहा था, ऐसा कुछ अरेंजमेंट वाटर टैंकर माफिया के साथ भी है। इसलिए कुछ भी हो जाए, मेरे वाटर टैंकर माफिया संरक्षित रहे, और उसके लिए सत्याग्रह करके किसी और को गाली देनी है, इसी के लिए पूरा जो अनशन किया गया है। तो इस पर तो आतिशी जी बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी बता रहे थे सारा पानी है उनके पास, वो वाटर टैंकर के पास जा रहा है, वाटर टैंकर माफिया के पास जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, टीएमसी का मतलब आज बन चुका है तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर, और ये तालिबानी मानसिकता और कल्चर के तहत हर चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा का एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो चुका है। आप देखिए, जब से सत्ता में आई है टीएमसी 2011 में, 2013 का पंचायती चुनाव, 18 का उसके बाद 23 का पंचायती चुनाव, 18 के पंचायती चुनाव में तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें रखी थी, 21 का पोस्ट पोल वायलेंस जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट ने बातें रखी थी कि रूल ऑफ लॉ नहीं लॉ ऑफ द रूलर बन चुका है, और हर जगह राजनीतिक हिंसा को इंस्टीट्यूशनलाइज कराना, यहां तक कि अगर कोई ईडी या एनआईए की टीम जाती है तो उनके ऊपर भी हमला हो जाता है। राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जाता है, केवल भाजपा के नहीं, यहां तक कि कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को भी मारा जाता है। तो पॉलिटिकल वायलेंस हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय द तृणमूल कांग्रेस एंड इट हैज बिकम an art form for them to indulge in political violence. Unfortunately, जो संविधान बचाओ और संविधान की कॉपी लेकर घूमने वाले लोग, जब स्वयं उनके नेता भी बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल में संविधान तो लागू ही नहीं हो पा रहा है, यहां पे राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है, अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं, तो ऐसे संविधान बचाओ वाली मंडली जिसमें सबसे आगे है राहुल गांधी, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। कम से कम अब जब कोर्ट के इतने आदेश आ रहे हैं तो उनको कम से कम जो संविधान बचाने की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जरूरी है, उस विषय पर कुछ जरूर बोलना चाहिए। This is the impact of cap politics. Cap meaning competitive appeasement politics. In the name of competitive appeasement politics, some parties say that first right of resources belongs to one community. Other parties indulge in this actually by giving the budget in this way. Or sometimes they even snatch away what is meant for the OBC community and give it off to another community, as has been called out by the Kolkata High Court very recently. And therefore, it would not be inappropriate to say that TMC not only means Talibani Mansikta and culture, it also means Tushtikaran Mujhe Chahiye. And in this Tushtikaran Mujhe Chahiye, from opposing Jai Shri Ram, opposing Durga Puja Visarjan, to going all out in appeasement politics, has been the recurring theme of the TMC government in West Bengal. हिंदी में बोल देता हूं, जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, उसको कह सकते हैं कि ये केवल तालिबानी मानसिकता और कल्चर का प्रदर्शन नहीं, बल्कि तुष्टीकरण मुझे चाहिए का ऐसा परिचय देती है, और कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स अर्थात कैप की पॉलिटिक्स का ऐसा परिचय देती है कि कुछ लोग उनके जो साथी है कहते हैं कि बजट पर पहला अधिकार फलाने समुदाय का, और कुछ लोग पश्चिम बंगाल में उसको जमीन पर उतारने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। कभी कोई आरक्षण किसी के लिए बना है ओबीसी के लिए, उसको भी छीनकर किसी और को देने की पूरी प्रक्रिया जो है उस पर पश्चिम बंगाल की कोर्ट ने बोला है। और यही तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस प्रकार के कई सारी चीजें हमने पश्चिम बंगाल में होते हुए देखी हैं। रामनवमी के जो जुलूस है उस पर हमले हो जाते हैं, जय श्री राम बोलने पर गिरफ्तार हो जाते हैं, दुर्गा पूजा विसर्जन की अगर कोई यात्रा हो तो उसके ऊपर रोक लग जाती है, और ताजिया को इजाजत दे देते हैं तो हाईकोर्ट को स्टेप इन करना पड़ता है।
तो ये कंटिन्यूस थ्रेड है, तुष्टीकरण मुझे चाहिए, अर्थात टीएमसी का। धन्यवाद।